الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ آج دنیا کے اندر دیکھیے ساری انسانیت پریشان ہے، کوئی کاروباری اعتبار سے، کوئی جسمانی اعتبار سے، کوئی اولاد کے اعتبار سے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھوٹے مقدمات اور جن کے اوپر جھوٹے مقدمات، جھوٹے الزام لگے ہوئے ہیں اور وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے جا چکے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ پریشانیاں انسان جھیل رہا ہے۔ پریشانی کیوں آتی ہے اور کب آتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے غلط کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں، ان پریشانیوں کو ان کے اوپر ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے بدعمالیوں کا مزہ چکھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی تنبیہ کرتا ہے تاکہ وہ واپس اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ اب پریشانیاں کبھی علاقائی طور پر آتی ہیں اور کبھی عالمی سطح پر آتی ہیں۔ اگر کسی علاقے کے لوگ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ علاقائی طور پر ان کے اوپر مصیبت، پریشانی، بیماری اور فاقہ کشی یہ سب بھیجتا ہے۔ اور کبھی پریشانیاں عالمی سطح پر آتی ہیں کہ پورے عالم میں جب گناہ عام ہو جاتے ہیں، برائیاں عام ہو جاتی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں مصیبتیں ڈالتا ہے۔ جیسے ابھی کرونا جیسے خطرناک دور سے ہم گزرے ہیں کہ جس میں ساری انسانیت پریشان تھی، ساری انسانیت ایک وقت سکتے میں آ گئی تھی۔ تو علاقائی طور پر پریشانیاں ہوتی ہیں اگر علاقے کے لوگ گناہ کرتے ہیں، اور عالمی سطح پر اگر پریشانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معتد بھی حصہ گناہ میں مبتلا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہے اور وہ دنیا پر طرح طرح کے مصیبتیں اور پریشانیاں بھیجتا ہے۔ پھر مصیبتیں اور پریشانیاں دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک پریشانی بطور آزمائش کے ہوتی ہے، امتحان کے ہوتی ہے، اور دوسری پریشانی بطور سزا کے ہوتی ہے، عذاب کے ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، نماز روزہ ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے تو ہم اس پریشانی سے گھبرائیں نہیں۔ یہ پریشانی ہمارے اوپر بطور آزمائش ہے، بطور امتحان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے وہ سب معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کے اوپر پریشانیاں آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اور جب وہ دین کی تبلیغ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ کے پیغامات کو لوگوں کو سناتے ہیں، تو لوگ دشمن بن جاتے ہیں۔ باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، اس دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں پتھر مار کر اپنے گھر سے نکال لوں گا۔ خاندان والوں نے کہا
کہ اے ابراہیم अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ वरना तुम्हें अपनी बिरादरी से निकाल देंगे। वक्त के बादशाह नमरूद ने कहा, अे इब्राहिम तुम अपनी इस हरकत से, इस दीन के तबलीग से बाज आ जाओ वरना तुम्हें आग में डाल दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घर से निकलना मंजूर, बिरादरी से निकलना मंजूर, आग में जाना मंजूर है, जाना कबूल है, लेकिन दीन की तबलीग को छोड़ देना और हक़ और सच्चे रास्ते को बतलाने से बाज रहना ये मुझे कबूल नहीं है। उसके बाद घर से भी निकाला जाता है, ख़ानदान वाले भी परेशान करते हैं और फिर नमरूद आपको आग में भी डलवा देता है। इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी हैं और आप ज़िंदगी के बहुत सारे मौक़े पर परेशान हुए हैं और परेशानी का आलम ये था कि फ़िरऔन जैसा ज़ालिम बादशाह जो अना रब्बुकुमुल आला कहता था कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ, वो आपके पीछे लगा हुआ था और तरह तरह की जुल्म व ज़्यादतियाँ वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर करता था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी हैं। आपको एक ऐसी बीमारी लग गई कि जिसकी वजह से घर वालों ने, ख़ानदान वालों ने, महल्ले वालों ने उनको अपने घर से निकाल दिया। तो ऐसी मुसीबतें, परेशानियां आईं। ख़ुद इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे इस दीन की खातिर इस कदर सताया गया, इस कदर तकलीफ़ दी गई कि सारे नबियों की परेशानियां एक तरफ रख दी जाएं और मेरी परेशानी एक तरफ रख दी जाए, मेरी परेशानियों का पलड़ा ये भारी हो जाएगा। ताइफ का ख़तरनाक मंज़र, ख़तरनाक वाक़या हमने और आपने सुना होगा कि ताइफ में जब आप दीन की तबलीग के लिए जाते हैं तो ताइफ वाले औबाश लड़कों को आपके पीछे लगा देते हैं जो आपके ऊपर पत्थरों की बारिश करते हैं। आपकी जूतियाँ मुबारक खून से बिल्कुल लथपथ हो जाती हैं। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर भी परेशानियाँ आईं। ये परेशानियाँ उनके लिए आजमाइश थी, ये परेशानियाँ उनके लिए इम्तिहान थी और ऐसी परेशानियाँ दे करके अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के दर्जात को बुलंद करना चाहता है। और अगर परेशानी दूसरी वजहों से है, ऐसी वजह से है कि जिस गलती की वजह से और जिस अमल की वजह से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, अगर उस अमल की वजह से है तो ये परेशानी हमारे लिए बतौर अज़ाब है, बतौर सज़ा है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा अगर किसी गुनाह से, किसी गलती से नाराज़ होता है तो वो है शिर्क। अल्लाह ताला हर गुनाह को चाहेंगे तो बख्श देंगे, लेकिन शिर्क इतना बड़ा ख़तरनाक गुनाह है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं शिर्क करने वाले को माफ़ नहीं करूँगा। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कि जो लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं अल्लाह ने उनके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है और उनका ठिकाना जहन्नम है और जालिमों का कोई यारो मददगार नहीं होगा। शिर्क कहते हैं जो अल्लाह की ताकत हो उसको किसी गैर में समझना। बेटा या बेटी मांगना है तो हम अल्लाह के दर से हटकर किसी गैर के दर पर जा कर के मांगते हैं। बीमारी से शिफा देना ये अल्लाह का काम है, हम अल्लाह से हटकर दूसरे के दरबार में जाते हैं। रोज़ी तलाश करना, रोज़ी देना ये अल्लाह के ज़िम्मे में है, हम उसको किसी और के पास जा कर के तलाश करते हैं। तो जो अल्लाह की कुदरत, ताकत और सिफत है उसको गैरुल्लाह में समझना ये शिर्क होता है और अल्लाह ताला को शिर्क करने वाले जो लोग हैं उनसे सबसे ज़्यादा नाराज़गी होती है। नंबर 2, सूद की वजह से अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा नाराज़ होता है। आज मुआशरे में सूद का लेन देन बिल्कुल आम हो चुका है। लोग आजकल सूद को ऐब ही नहीं समझते, गुनाह ही नहीं समझते, हालांकि अल्लाह ताला का इसके बारे में ख़तरनाक ऐलान है। फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि ऐ लोगों अगर तुम सूद के लेन देन से, सूद के कारोबार से नहीं रुकोगे
تو तुम्हारे खिलाफ अल्लाह रसूल से जंग का ऐलान है। सूद इतना बड़ा ख़तरनाक गुनाह है। नंबर 3, नाप तौल में कमी करना। 5 किलो का 4 किलो बना देना, 4 किलो का 3 किलो बना देना, इसको कहते हैं नाप तौल में कमी करना। नाप तौल में कमी करके थोड़ी देर के लिए हमें फ़ायदा महसूस होगा, लेकिन उसकी वजह से हम किसी का हक़ मार रहे हैं, किसी पर जुल्म कर रहे हैं, और उसकी सज़ा हमें अल्लाह ताला दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। नंबर 4, माँ बाप की नाफरमानी करना। जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, उनकी इताअत नहीं करते, उनकी खिदमत नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जो अज़ाब देंगे वो देना है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दुनिया में भी ज़लील व ख्वार करते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला माँ बाप की नाफरमानी से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और उसकी वजह से हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से मुसीबतें और परेशानियां आती हैं। नंबर 5, शराब, जुआ और शराब, इसकी वजह से भी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। आज हमारा नौजवान जुए और शराब का बिल्कुल आदी हो चुका है। जुए और शराब में अपनी कीमती ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। जुए और शराब की वजह से अपनी दुनिया भी तबाह कर रहा है और अपनी आखिरत भी तबाह कर रहा है। जुए और शराब ने कभी किसी का फ़ायदा नहीं किया है। ये तो देखा गया है कि शराब की वजह से किसी का घर उजड़ गया, खेत और खलियान बिक गए और औलाद, घर वाले भटक रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, इज़्ज़तें भी बेकार हो गईं, लेकिन शराब की वजह से किसी को फ़ायदा नहीं मिला। हदीस पाक में आता है, अल खम्रु जुम्माउल इस्म, शराब तमाम बुराइयों का जड़ है। तो हमें चाहिए कि हम शराब से दूर रहें। अगर हम अल्लाह की नाराज़गी से बचना चाहते हैं, अल्लाह के गुस्से से बचना चाहते हैं, तो शराब जैसी मलऊन चीज़ को अपने मुआशरे से, अपने दिल से निकाल दें। नंबर 6, झूठी गवाही देना। आजकल अदालतों में आप जाइए, चंद पैसों के खातिर अपने ईमान को बेच देते हैं, अपने ज़मीर को बेच देते हैं, और ऐसे लोग जिन पर कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई गुनाह नहीं, बेचारे बेगुनाह हैं, हमारी झूठी गवाही की वजह से वो फंस जाते हैं और जेल की सलाखों में उनको जाना पड़ता है। तो झूठी गवाही से भी अपने आप को बचाना। नंबर 8, बंदों के हक़ मारने की वजह से। आज हमारे पास माल है, दौलत है, ताकत है, तो हम अपनी ताकत की बुनियाद पर अगर किसी के ऊपर जुल्म करें, ज़्यादती करें, किसी का माल नाहक तरीके से ले लें, किसी की ज़मीन जायदाद और नाहक तरीके से हड़प लें, ये बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह को तो माफ़ कर देता है, लेकिन हुकूकुल इबाद यानी जो बंदों के हक़ हैं वो अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करता है। तो बताइए, इनमें से जितनी वजूहात मैंने आपके सामने पेश की हैं, बयान फरमाई हैं, इसमें से कौन सी वजह है जो हमारे अंदर नहीं पाई जा रही है? ये सारी वजूहात का हम शिकार हो चुके हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि इन तमाम चीज़ों से तौबा करें। अगर हम अल्लाह की नाराज़गी से बचना चाहते हैं, अल्लाह के गुस्से को हम ठंडा करना चाहते हैं, तो हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। हम नमाज रोज़े की पाबंदी करें, हम सदका खैरात करें, अच्छे आमाल करें और मुआशरे को नेक बनाएं और मुआशरे में अमन और सुकून पैदा करें। अगर हम ये तरीक़े अपनाएंगे, अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें आएंगी, अल्लाह की तरफ से बरकतें आएंगी और पूरी दुनिया में अमन और सुकून होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की जो कीमती मालूमात हैं वो आपको आसानी के साथ फराहम हो सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।